In case if it is connected, so it is bind to that particular mapping. Anywhere in the mapping, like किसी भी transformation से it is connected. Okay, that means Right. it's connected. अगर वो unconnected है, तो it will not be a part of mapping. It will be placed outside the mapping in this workspace. जी. It's still in the mapping, but it's not the part of line. Like जैसे line by line चलता है ना, वो line link by link चलता है. So it is not जी. part of that link by link. Okay. So it is placed outside it. It's the part of mapping, but placed outside the pipeline. Okay. जी. Okay, I will show जी. you. And Sure. apart from unconnected lookup, we will talk about parameters and variables. Variables. All right. Very important. We'll talk about this. So Sure. unit objective here is, after completing this unit, you should be able to describe these features: unconnected lookup transformation, system variable, mapping parameters and variables. Okay. And when we'll do it in practical, I will show you the features. Sure. Let's move on to next page. So see here, like how unconnected lookup is placed outside transformation. Okay. Commonly outside pipeline. Right. So this is this one and stored procedure transformation. These are two transformations which can be unconnected. Which one? This lookup transformation plus stored procedure transformation. In Informatica, you can place only two transformation unconnected. These are the two: stored procedure and lookup. Okay. आप देख सकते हैं नीचे देखो, यहाँ पर नीचे लुकअप जो है, दो और भी लुकअप है, वो कनेक्टेड हैं. जी. राइट. देयर आर टू मोर लुकअप व्हिच आर कनेक्टेड. राइट. ये दो अनकनेक्टेड है. ये दो कनेक्टेड हैं. अच्छा, कनेक्टेड है ये दो. या बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द डेटा पाइपलाइन. सी ना, डेटा फ्लो हो रहा है, वो पाइपलाइन से दिख रहे हैं आपको कि उसका लिंक है. लाइक हाउ एक्सप्रेशन इज कनेक्टेड टू लुकअप, then how lookup is connected to aggregate. तो कैसे connection है वो दिख रहा है, but in lookup you can't see that. Okay. Commonly when we use this like unconnected lookup, हम कब use करते हैं? use करते हैं जब हमें हर एक रिकॉर्ड के लिए लुकअप नहीं चाहिए होता. मैंने आपको बताया था कनेक्टेड लुकअप क्या करता है, हर एक रिकॉर्ड के लिए आपको डेटा देता है. इन केस अगर वो नहीं भी है, मान लो अगर आपका फ्रेंड का मेरे को एड्रेस आपने दिया और मेरे को फोन नंबर नहीं भी मिला, राइट, तब भी मैं नल वैल्यू दूंगा. अच्छा जी, करेक्ट, राइट. ओके, सो इन दिस केस like you can make sure that you don't want other records. You want only the record which you want to use. So it is commonly used when a lookup not needed for every record. No links from or to other transformations. See, कोई link नहीं है इसका किसी भी transformation से. No links from two other transformations. Yes. किसी भी transformation से कोई link नहीं है. Lookup data is called at the point in the mapping that needs it. मतलब आपको जहां पर भी इसका डेटा चाहिए, आप वहां पर इसका डेटा यूज करेंगे. अच्छा. And the way to use data is how will we use that data? You can see it is written here. Right. Like we'll just use expression transformation, or let's say the expression editor of the transformation, wherein we'll write the expression and we'll pull the data from unconnected lookup. जी. Okay. तो ये unconnected lookup जो है वो मान लो कि मतलब ये भी एक Informatica की ट्रांसफॉर्मेशन है. Yes, जो भी हम ये ट्रांसफॉर्मेशंस जो भी यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन. अगर वो प्रॉपर्टी होगी तो हम उसको एडिट करके आपको मैंने वैसे दिखाया होता. तो राइट, जैसे कल ने आप लुकअप कैश दिखा रहा था, दैट वाज प्रॉपर्टी. वो आपको मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की तरह नहीं दिखाई मैंने. ये लुकअप ट्रांसफॉर्मेशन दो टाइप की होती हैं, एक कनेक्टेड एक अनकनेक्टेड.
दोनों ही Oh, आपको यहाँ पर दिख रही हैं। कनेक्टेड जो है उसका आपको फ्लो पता लग रहा है, कहाँ से डेटा आ रहा है, कहाँ को जा रहा है। पर अनकनेक्टेड लुकअप आपका अलग से प्लेस्ड होता है, उसका कोई कनेक्शन नहीं होता किसी से, बट उसको यूज करने के लिए आप कहीं भी मैपिंग में यूज कर सकते हैं। जहां पर आपको एक्सप्रेशन एडिटर मिलेगा आप वहां पर उसको यूज कर सकते हैं। तो आप आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस कॉलम में उसकी वैल्यू लेकर आ रहे हैं। तो जी, कॉलम में वैल्यू लाने के लिए आप उसका एक्सप्रेशन लिख देंगे कि दिस इज एक्सप्रेशन टू गेट द value of lookup from unconnected lookup transformation. I will show you how we'll do that. okay, Okay, जी, and it is commonly used when lookup is not needed for every record. नहीं तो कनेक्टेड लुकअप जो होता है वो हर एक रिकॉर्ड के लिए रिकॉर्ड लेकर आता है, चाहे ना भी हो। अगर किसी के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है, मान लो आई एम नॉट अर्निंग, आई डोंट हैव एनी सैलरी, सो इन दैट केस सैलरी की जगह पर नल आ जाएगा, आएगा जरूर रिकॉर्ड। अच्छा, लेकिन नल आएगा। It will not miss me because I don't have any salary. It will write a record. But in case of connected lookup, I can specify like what kind of data I want. For example, I want the data of Hafiz, so I will just write the name of Hafiz and I will get that data only. राइट, राइट, So I will not get any extra data. जी, Right? उसके अंदर connected के अंदर extra data आ रहा था। जो भी डेटा पहले से इस पाइपलाइन में आ रहा है वो सारा का सारा ही आएगा, चाहे उसकी वैल्यू नहीं भी होगी तो वहां नल लिखा हुआ आ जाएगा, बट उसके अंदर वैसा नहीं है, अच्छा, अनकनेक्टेड। हाँ, जी, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड इफ यू आर ओके विद दिस। So see why I am saying it will give you only the values related to whatever you need. So see here, calling an unconnected lookup. How will you call unconnected lookup? You will use lookup function within a conditional statement. आपने कंडीशनल स्टेटमेंट लिख दी, आपने बोला कस्टमर आईडी जहां पर नल हो, इज नल कस्टमर आईडी, इफ इज नल कस्टमर आईडी, देन लुकअप द वैल्यू फ्रॉम लुकअप ट्रांसफॉर्मेशन, विच वैल्यू, ऑर्डर नंबर। कस्टमर आईडी जहां पर नल हुई वहां पर आप वैल्यू लेकर आ जाओगे ऑर्डर नंबर की, और ऑर्डर नंबर लिख दोगे। एल्स कस्टमर आईडी, अगर कस्टमर आईडी नल नहीं है तो वो कस्टमर आईडी ही रहेगी, लास्ट में लिखा हुआ देखो, जी, ठीक है। राइट, row keys passed to the lookup, like this row keys, like आपका जो आपने लुकअप करा, आपने माई लुकअप के अंदर जाकर देखा, ऑर्डर नंबर लेकर आए, ऑर्डर नंबर आपका इस कॉलम की वैल्यू आ जाएगी अगर कस्टमर आईडी इज नल, अगर नहीं है तो वो कस्टमर आईडी ही आएगी। ओके, जी, condition is evaluated for each row but lookup function is called only if the condition is satisfied. कंडीशन सबके लिए कैलकुलेट होगी, मतलब मान लो अगर हम एक स्कूल में गए एंड वी वांट टू फाइंड आउट द पीपल, वी वांट टू फाइंड आउट द किड्स हु हैव इंटरेस्ट इन फुटबॉल, तो हम हर एक बच्चे को एसेस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी को एसेस नहीं करेंगे, हम हर एक के आगे फुटबॉल रखेंगे और बोलेंगे बच्चे इसको मार के दिखाओ फुटबॉल को, राइट, राइट। हर एक के आगे हम रखेंगे, विल नॉट से कि यू विल नॉट डू दिस, यू विल नॉट डू दिस, कंडीशन हर एक के ऊपर होएगी, हर एक के ऊपर कंडीशन करेंगे। बट जिस टाइम पे हमें मिल गया वो रिकॉर्ड, हमें वो बच्चा मिल गया जो अच्छा खेल सकता है, प्रिपरेशन हम उसकी ही कराएंगे, राइट। अब जी, ऐसे ही जहां पर हमें कस्टमर आईडी नल वाले रिकॉर्ड्स मिले उस पे हम ऑर्डर नंबर डाल देंगे, ट्रांसफॉर्म लुकअप अनकनेक्टेड लुकअप से निकाल के। अच्छा, बस ये डायरेक्ट एक ये लिखने से ही आपका आ जाएगा। आपने ये बोला ना कि ये अनकनेक्टेड लुकअप है, उसका पता कैसे लगेगा, कोलन एलकेपी, कौन सा लुकअप का ट्रांसफॉर्मेशन का नाम क्या है, डॉट माई लुकअप, कौन सा कॉलम आपने डिस्प्ले कराना है, ऑर्डर नंबर उसका, राइट, ओके। सो दिस इज अबाउट लाइक कैसे आप कंडीशन लिखेंगे और कंडीशन सेटिस्फाई होने पर कैसे आपकी वैल्यू लेकर हम आएंगे। नहीं तो लुकअप ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा था, नॉर्मल कनेक्टेड में हम हर एक रिकॉर्ड को लेकर आ रहे थे, यहाँ पर हम उसी को लेकर आएंगे जहां पर कस्टमर आईडी नल है, जी, ओके, सो इफ यू आर ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। So here are the advantages of unconnected lookup. So see here, data lookup is performed only for those rows which require it. It is a substantial performance increase, I will say. Okay. राइट, एक चीज सोच के देखो, अगर एक मैपिंग को 5 लाख रोज रीड करने हैं,
मतलब एक मैपिंग में से 5 लाख रोज पास हो रहे हैं, सारे सोर्स से आए, सोर्स क्वालिफायर से आए, फिर और ट्रांसफॉर्मेशन से आते जा रहे हैं। अब आगे लुकअप आ जाता है, लुकअप आया तो लुकअप भी 5 लाख ही पास करेगा, चाहे उसके अंदर आपके मान लो कुछ रिकॉर्ड ऐसे हो जो जिसकी लुकअप के पास वैल्यू भी ना हो, राइट राइट, तब भी वो पास करेगा। बट इन केस अगर हमें किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे वो डेटा चाहिए, लाइक हमें चाहिए कहीं पर आइटम आईडी नल हो, बस उसको ही हम एसक्यूएल नंबर दें, अदरवाइज आइटम आईडी, तो हमने ये यूज कर लिया। तो क्या हुआ कि बस 10,000 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जहां पर आइटम आईडी नल है, अच्छा और वहीं पर ही हमने कैलकुलेट करा, अदरवाइज कैलकुलेट और यू कैन से लुकअप करा, अदरवाइज हमारा आइटम आईडी चल रहा है। तो हमारी नेट सेविंग कितनी हुई, 5 लाख रोज में से ओनली 10,000 के लिए हमने लुकअप चलाया, और हमने 4,90,000 लुकअप्स नहीं चलाए। राइट जो अगर हम कनेक्टेड यूज कर रहे होते तो हमें चलाने पड़ते, चाहे उसमें नल वैल्यू आती। एग्जैक्टली इसीलिए हमने अनकनेक्टेड लुकअप चलाया जिसमें सिर्फ हमें 10,000 की वैल्यू चाहिए, बाकी की 4,90,000 नल है। 4,90,000 की ऑलरेडी वैल्यू ऑलरेडी है ना, आइटम आईडी ऑलरेडी है, ऑलरेडी या आइटम आईडी नल जहां पर है हमने वहीं पर ही फिल करना है, वहीं राइट पर लुकअप करना है, तो उसके अंदर फिर हम ऐसे लुकअप ऐसे कर देंगे, करेक्ट। यस इफ नेट इज सेविंग हियर इज 4,90,000, जो आपको 4,90,000 में टाइम रिसोर्सेज लगने थे वो आपके बच गए, राइट राइट। इफ यू आर राइट ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। तो हियर आर द फंक्शनैलिटी, लाइक कैसे आपको यूज करना है। आपने लुकअप ट्रांसफॉर्मेशन बनाई, जैसे नॉर्मल लुकअप ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, बस हम कनेक्ट नहीं करेंगे किसी और ट्रांसफॉर्मेशन से। वन लुकअप पोर्ट वैल्यू मे बी रिटर्न फॉर ईच लुकअप, आपको एक वैल्यू रिटर्न करनी पड़ती है अनकनेक्टेड लुकअप में। देखो आपने वो चेक करी हुई है, यू मस्ट चेक डिस्काउंट द पोर्ट जो आपको वहां पर डिस्प्ले करानी है, जैसे ऑर्डर नंबर था, जैसे एसकेयू नंबर था इन प्रीवियस एग्जांपल्स, राइट राइट। आपको वो डिस्प्ले कराना था तो आप वो लेकर आ रहे थे, और उस वैल्यू को लेकर आने के लिए कौन सी वैल्यू लुकअप करोगे आप, यहाँ पर उन्होंने सारी चेक कर रखी है। बट कंपेयर किस पे होएगा, प्रोमो आईडी पे। देखो प्रोमो आईडी, इन प्रोमो आईडी दो है, एक आ रही है इनपुट आ रहा है, एक आउटपुट पे है, यहाँ पर राइट आउटपुट और लुकअप पे है, तो इनपुट और आउटपुट कंपेयर करेंगे इसका प्रोमो आईडी का, ये दोनों का, जहां पर वो कंपेयर होगा तो उस पे हम वैल्यू दे देंगे, उसको डिस्काउंट दे देंगे, राइट। जी जी So must check a return port in the ports tab or expression that calls lookup is invalid. तो इसमें अनकनेक्टेड लुकअप का पोर्ट कौन सा है? अनकनेक्टेड लुकअप का कोड हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे ना, वो तो हम एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन में या फिर एक्सप्रेशन एडिटर इन एनी ट्रांसफॉर्मेशन देयर विल राइट दैट। नो आई एम टॉकिंग अबाउट द पोर्ट, लाइक ये जो पोर्ट्स है, इनपुट आउटपुट एंड लुकअप है, ये आर क्या है? ये आर इज रिटर्न, मतलब जो वैल्यू आप देना चाहते हो, जो वैल्यू उस कॉलम के लिए जाएगी जहां पर आप उसको स्पेसिफाई ओके करना चाहते हो, जैसे ऑर्डर नंबर था, एसक्यू नंबर था। अच्छा, so must check a return port in the ports tab or expression that calls lookup is invalid. राइट Okay. So ये unconnected lookup की functionality है ये. यस, कि मतलब उसको यूज कैसे करना है, अपने पोर्ट्स कैसे होते हैं उसके अंदर, IOLR, L मींस लुकअप, R मींस रिटर्न। आपको मैंने बताया था कि एड्रेस लेकर, आपने मेरे को एड्रेस दिया, मैं एड्रेस लेकर गया और मैंने रिटर्न जो करना है आपका फोन नंबर करना है। तो इसके अंदर जब हम अनकनेक्टेड लुकअप यूज कर रहे हैं तो मैं एक ही चीज रिटर्न कर सकता हूँ, फोन नंबर। इफ यू आस्क ईमेल, सारी चीजें वो मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज एक ही वैल्यू रिटर्न हो पाएगी जो आप रिटर्न सिलेक्ट करेंगे। Right. ओके अगर आपने वो सिलेक्ट नहीं करा तो आपका एक्सप्रेशन जो आप एक्सप्रेशन में लुकअप डालोगे वो इनवैलिड आ जाएगा, इट इज इनवैलिड, वो वैलिडेट नहीं कर पाएंगे आप। आपको चेक करना जरूरी है, आपको ये बताना जरूरी है कौन सी वैल्यू आप रिटर्न करना चाहते हो, राइट। अच्छा, right. ऐसा तो नहीं होगा ना आप ये ना बताओ उसको कि भाई कौन सी वैल्यू लेकर आनी है, वो अपने आप ही सोचे, वैसा नहीं होना चाहिए ना। तो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग इट विल बी इनवैलिड इफ यू विल नॉट स्पेसिफाई इट, Okay. करेक्ट। Right. Move on to next. So here is the difference between the two. Connected Yes. versus unconnected. Yes. पहला तो आपको पता ही है, पार्ट ऑफ मैपिंग डेटा फ्लो सेपरेट फ्रॉम मैपिंग डेटा फ्लो, राइट। एक मैपिंग फ्लो का पार्ट है, एक मैपिंग डेटा फ्लो का पार्ट नहीं है, इट इज डिफरेंट।
सो कनेक्टेड रिटर्न्स मल्टीपल वैल्यूज, आपने देखा है वो सारी की सारी वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है कनेक्टेड। returns multiple values by linking output ports to another transformation. हाँ, जितने आपने But here, देखो ना, कनेक्टेड है तो कनेक्टेड में जितने भी आप लिंक कर देंगे आउटपुट टू अगले का इनपुट, वो सारे के सारे चले जाएंगे। right, बट अनकनेक्टेड में आप जो भी एक्सप्रेशन में स्पेसिफाई करेंगे और रिटर्न चेक करेंगे जिसका, वही जाएगा। okay, जी, Here, by checking the return port option for the output port that provides the return value, you will return only one value, right? जी, जी, कनेक्टेड हर एक रिकॉर्ड के लिए एग्जीक्यूट होता है, सारे रिकॉर्ड्स पे एग्जीक्यूट होएगा। मान लो किसी पे नहीं भी चाहिए वैल्यू, कस्टमर आईडी ऑलरेडी है, वहां पर भी वो कस्टमर आईडी डालेगा, right, राइट? वो मतलब 5 लाख के 5 लाख रिकॉर्ड्स पे चलेगा। बट यहाँ पर जिन 10,000 रिकॉर्ड्स में प्रॉब्लम है उन पे ही काम होगा अनकनेक्टेड लुकअप में। अच्छा, अब जो चीज कनेक्टेड, passing through the transformation only executed when the lookup function is called. राइट, करेक्ट। तो सही, मोर विजिबल तो होगा ही ना, कोई कनेक्टेड है तो ज्यादा विजिबल होगा, अनकनेक्टेड है तो लेस विजिबल होगा। absolutely, इफ yeah, लेट्स से कोई चीज डेटा पाइपलाइन के अंदर आपको दिखेगी, वो आपको विजिबल होगी। अगर डेटा पाइपलाइन के अंदर नहीं है, कहीं इधर उधर पड़ी है, तो दैट्स लेस विजिबल। तो एक्सप्रेशन यूज करना होगा। अगर से हमें अनकनेक्टेड लुकअप यूज करना है तो एक्सप्रेशन लगानी होगी। एक्सप्रेशन एडिटर में एक्सप्रेशन बनाना होगा, कैलकुलेशन लिखनी होगी, और वो लिखने का तरीका आपने देखा ही था, कोलन LKP डॉट मैप ट्रांसफॉर्मेशन नेम लुकअप अनकनेक्टेड लुकअप ट्रांसफॉर्मेशन नेम, देन द वैल्यू यू वांट टू रिटर्न। ओके, सिंपल सा वो है, उसको याद करना होगा। इसमें है डिफॉल्ट वैल्यूज आर यूज्ड एंड इसमें है डिफॉल्ट वैल्यूज आर इग्नोर्ड। मतलब जो डिफॉल्ट वैल्यूज का नीचे ऑप्शन होता है वो एक में यूज होगा, एक में इग्नोर कर सकते हो आप। राइट, So that was about unconnected lookup. If you have any question about unconnected lookup, please ask. नो, No. So here is the next you can say distinguish between joins एंड लुकअप and here like हमारे पास joins भी दो टाइप के हैं। एक source qualifier join जो हमारा homogeneous join होता है, right? राइट, हेट्रोजीनियस जॉइन जिसमें हम जॉइनर यूज करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एडवांटेजेस है कैन जॉइन हेट्रोजीनियस सोर्सेज, कैन जॉइन नॉन रिलेशनल सोर्सेज, क्योंकि हम फाइल्स को भी यूज कर सकते हैं, फाइल से भी जॉइन कर सकते हैं। तो नॉन रिलेशनल सोर्सेज कैन बी जॉइंड यूजिंग दिस। कैन जॉइन पार्शियली ट्रांसफॉर्म डेटा, तो अगर आपने पूरा ट्रांसफॉर्म भी नहीं करा है डेटा, इफ यू वांट टू जॉइन दैट यू कैन जॉइन यूजिंग जॉइनर। डिसएडवांटेज क्या है जॉइनर की? कैन ओनली जॉइन 2 इनपुट डेटा स्ट्रीम पर जॉइनर। हर जॉइनर में आप 2 ही डेटा स्ट्रीम डाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते। ओके, ओनली सपोर्ट इक्वी जॉइन, मींस आपको इक्वल कंडीशन देनी पड़ेगी। इक्वी जॉइन को भी सपोर्ट करता है। यस, आपको इक्वल कंडीशन देनी पड़ेगी। इफ यू आर नॉट गिविंग द कंडीशन मैचिंग कंडीशन देन इट विल नॉट वर्क। राइट, यू कांट राइट और कंडीशंस, it will not recognize और conditions. जी, So these are drawbacks or disadvantages of using joiner. अब source qualifier join पे देखो, can join any number of tables, मतलब आप एक बारी में ही मतलब source qualifier से आपने 10 tables connect कर दी तो आप 10 की 10 इकट्ठे join कर सकते हो। There is no restriction on number of tables you can join, जैसा कि joiner में था, joiner में 2 ही कर सकते थे, यहाँ पर any number of tables you can join. Full functionality of standard SQL is available. मतलब आप SQL overrides लिखो, कैसे भी SQL लिखो, that is available here. You can write it in properties. Source qualifier make reduce volume of data on network. Like it may reduce volume of data on network. How you can specify the filter? अगर आपने filter specify कर दिया तो वो वही data लेकर आएगा जो आपको required है, बाकी data नहीं आएगा। तो इससे आपका डेटा कम हो जाएगा, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। में reduce volume of data on network. जी, यस। डिसएडवांटेज क्या है? हेट्रोजीनियस पे नहीं चलेगा, बस होमोजीनियस पे चलेगा।
रिलेशनल टेबल्स पे चलेगा, नॉन रिलेशनल सोर्सेज पे नहीं चलेगा। कैन अच्छा। अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑन सोर्स डेटाबेस, सोर्स डेटाबेस पे चलता है। जो भी आप सोर्स क्वालिफायर पे करते हो वो इन्फॉर्मेटिका के सर्वर पे ना चल के सोर्स डेटाबेस पे चलता है। अच्छा ओके, जी। so if you have any question in the difference of joiner with source qualifier join, please ask. अगर से हमें कोई ज्वाइन करनी है तो सिर्फ सोर्स क्वालिफायर से हम यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? Correct. अगर वो होमोजेनियस होमोजेनियस है तो सेम होमोजेनियस है तो अगर सेम डेटाबेस से अगर सेम डेटा ला रहे हैं तो राइट। if we are bringing a data from a different databases, then we are going to use a joiner transformation. That's required. Without that, That's required. Without that, we are not able to bring data from a different databases okay, yeah, and can join heterogeneous sources. yes, The advantages is, I understand, may reduce volume of data on network, full functionality of a standard SQL available. Disadvantages that can only join homogeneous relational tables. Okay. चले अब इस पे lookup के advantages और disadvantages पे आते हैं. okay. So if you'll see here in lookup, what are the advantages? एक तो कैश मिल जाता है आपको. Can reuse cache across session runs. जी. अगर आपका persistent कैश आपने सिलेक्ट कर दिया तो आप सेशन आपका रन करेगा, उसके बाद स्टॉप होगा, उसके बाद भी आप उस कैश को यूज कर सकते हैं. तो इट कैन बी रीयूज across. Can reuse cache in mapping. You can reuse cache within mapping. बार बार Right. आप यूज कर सकते हैं. कैन मॉडिफाई कैश डायनेमिकली. अगर आपने डायनेमिक कैश चेक कर दिया तो वो डायनेमिकली अपने आप मॉडिफाई होता जाएगा. मैंने बताया था ना, अगर नया डेटा आया तो वो अपने आप मॉडिफाई करता जाएगा अगर आपने डायनेमिक बोल दिया. अगर आपने स्टैटिक बोला तो इट विल रिमेन बी स्टैटिक इवन दो आप टेबल में ऐड कर दो, जैसा आया था वैसे रहेगा. कैश चेंज नहीं होगा. Okay. राइट. Right. Can choose to cache or not to cache. अगर आप कैश लुकअप कैश एनेबल टिक नहीं करोगे तो इट विल नॉट बी एक्टिव. Okay. So it's up to you if you want your cache to activate or not. Not to cache. Up to you. Can query a relational table or a flat file. Yes, can query relational table or a flat file means आप lookup से query भी कर सकते हो relational table और flat file. Inequality comparisons are allowed. You can write less than equal to, not equal to, greater than equal to. So any inequality comparison you can do. But joiner में क्या था, आप equi join ही कर सकते हो, equality वाली ही बातें कर सकते हो. Okay. Right? जी. Inequality comparisons are allowed. SQL override supported. Can be unconnected and invoked as needed. SQL override आप लिख सकते हो उसके अंदर. आप you can use it as unconnected and invoked as needed. आपकी मर्जी है उसको connected करना है या unconnected करना है. अच्छा. Right? Cannot output multiple matches. Disadvantages है, मल्टीपल मैचेस नहीं दे सकता था, पर अब दे सकता है. मैंने आपको बताया था मल्टीपल मैचेस पे क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू क्या यूज करना है. दिस इज एक्चुअली चेंज्ड इन द न्यूअर वर्जन्स, लाइक जो हम यूज कर रहे हैं उसमें यू कैन सी. Okay. राइट. Unconnected can only have one return value or conditions not supported. राइट. और कंडीशन यहाँ पर भी नहीं सपोर्ट करते, जॉइनर में भी नहीं करते. अनकनेक्टेड में यू कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू, उससे ज्यादा वैल्यू आप रिटर्न नहीं कर सकते. मैंने आपको दिखाया था वहां पर. So what is OR condition? और कंडीशन मतलब अगर आप देखो, आप ये बोलते हो कि मैं मिल्क लाऊंगा और ब्रेड लाऊंगा, तो विल सी लाइक आप ये भी हो सकता है आप मिल्क भी ले आओ और ब्रेड भी ले आओ, ये भी हो सकता है मिल्क लेकर आओ, ये भी हो सकता है ब्रेड लेकर आओ ओनली, और इज या ये. Oh, okay. Right. और एंड इज ये भी और ये भी.
और ये भी, Right. दोनों चाहिए, एक में दोनों में से कुछ भी होगा चलेगा। तो यहाँ पर हम और यूज नहीं कर सकते, एंड यूज कर सकते हैं। यस, लुकअप और जॉइनर में एंड यूज कर सकते हो और यूज नहीं कर सकते। Okay. Okay, so this is about lookup, joiner, source qualifier join. If you have any question around it, please ask. सब कुछ हमारे से रिलेटेड ही है जो अभी तक हमने करा है, जी। so the things are very clear. Right. नहीं, ठीक है, ये समझ में आ गया। Okay, then थोड़ा सा मतलब लुकअप ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है, राइट? आई मीन सोर्स क्वालिफायर जॉइन एंड जॉइनर इज नाइस। वो भी डिफिकल्ट नहीं है। When we'll do it, you will be able to get it very easily. Okay. अभी दो आपको वो दिख रहे हैं ना, उसके अंदर लुकअप करना फिर रिटर्न करना, Right. very easy for you soon. Okay. When we'll do the practical, it will be easy. Okay. Okay, now it's system variable. अब कुछ वेरिएबल सिस्टम अपने बना के, वेरिएबल क्या होते हैं पहले तो? सिस्टम वेरिएबल्स क्या होती हैं? राइट, वेरिएबल्स क्या होते हैं? नो, आई डोंट नो। सो दो टाइप की चीजें होती हैं, एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल। कांस्टेंट होती है जो ऐसे की ऐसी ही रहती है, कभी चेंज नहीं होगी। आपका नाम हमेशा हफीज रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। वेरिएबल आपका एज, वो इंक्रीज होता रहेगा डे बाय डे, सेकंड बाय सेकंड, मिनट बाय मिनट, यू आर ग्रोइंग राइट, older, right? So Right. that's variable. Age is variable. आपका weight is variable. आपकी height was variable till some particular time, but now it is constant because it is not changing. तो अब आपको पता लग गया constant और variable क्या चीज है? Constant that will never change, variable that will change or vary at any time. Variable is vary plus yeah, I know. Right, got it. vary. मैं इसको लॉजिकल उसमें, एनालिटिकल उसमें ले रहा था वेरिएबल्स को। ये तो कॉमन सी चीज है वेरिएबल, कॉमन सी चीज है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल, अब कुछ वेरिएबल आप डिफाइन करते हो, कुछ वेरिएबल सिस्टम डिफाइन करता है। अच्छा, राइट, राइट। सिस्टम वेरिएबल्स आर लाइक, वी यूज दिस सिस्टम वेरिएबल्स, सिस डेट। अगर आपको अभी का डेट चाहिए, अगर आपको अभी का डेट चाहिए तो वो कांस्टेंट है। दैट इज नॉट कांस्टेंट, वेरी कर रहा है ना। अभी का डेट भी वेरी कर रहा है और सिस्टम अपने आप ही आपको निकाल के दे रहा है। सिस्टम की फंक्शनैलिटी है ये। यू कैन राइट सिस डेट, अगर आपने कहीं पर सिस डेट लिखा तो सिस्टम आपको वहां पर अपना डेट दे देगा उस टाइम का। सेशन स्टार्ट टाइम लिखा, जैसे ही आपका सेशन स्टार्ट होएगा तभी आपका वो रिटर्न कर देगा उस डेट को और उस टाइम को। ओके। अब आपने let's see here, provide current night time on power center server machine. जो भी power center server machine पे time होगा वो दे देगा। It is not a static value, means it is not a constant, it is system variable. Okay, now session start time, it returns the system date value on power center server. Again date ही दे रहा है, used with any function that accepts transformation date और time data types. जहां आप वहीं पर इसको यूज करोगे जहां पर आपको डेट और टाइम डेटा टाइप देना है। मतलब ऐसा नहीं करोगे आप डेसिमल में दे दो या स्ट्रिंग में दे दो, यू विल ओनली गिव इट वेयर यू वांट टू गिव डेट एज वेल एज टाइम। ओके, इट कांट बी यूज्ड इन सिक्वल ओवरराइड। आप ऐसा नहीं कर सकते अपना सिक्वल ओवरराइड में यूज कर लो। उसको यूज करने के लिए देयर इज अ वैल्यू सी $$ सेशन स्टार्ट टाइम, जैसा नीचे लिखा है थर्ड बॉक्स में वैसा आपको करना पड़ेगा। इट कैन बी यूज्ड इन सिक्वल ओवरराइड। इट हैज अ कांस्टेंट वैल्यू, both of them has a constant value. क्यों कांस्टेंट है? बिकॉज जिस टाइम पे एग्जीक्यूशन हुआ वो कांस्टेंट है ना, आपका बर्थ टाइम दैट वाज कांस्टेंट। राइट। ऐसे ही एग्जीक्यूशन ऑफ योर सेशन, वो पर्टिकुलर टाइम जिस टाइम पे सेशन रन करा, दैट इज आल्सो कांस्टेंट। अच्छा जी, करेक्ट। returns the system date value as a string, uses system clock on machine hosting power center server. Correct. So format of the string is database type dependent. Right. So format of the string is database type dependent. Used in SQL override. Yes. Has a constant value. Okay.
So if you have any question here, please tell me. Otherwise, let's move on to next. So system variable, where you are going to and when we are going to use the system variables, is it a transformation or? आपको एक कॉलम के अंदर सिस्टम डेट चाहिए, मतलब जिस टाइम आप मतलब रन कर रहे हैं चीज टेबल में से, उस टाइम का डेट चाहिए आपको, चाहिए जिस टाइम आपका सेशन स्टार्ट हुआ उस टाइम का सेशन स्टार्ट टाइम चाहिए, राइट? अगर आपको वो चीजें चाहिए, क्यों चाहिए? मान लो आपको अपना एज निकालना है, एज कैसे निकालोगे? मेरे को आज का डेट पता है, बट कंप्यूटर को कैसा पता लगेगा? कंप्यूटर को पता करने के लिए पावर सेंटर के ऊपर जो डेट है, जो आपके कंप्यूटर के ऊपर डेट है, वही निकल के उस पर लगा दी जाएगी और उससे आपका बर्थ डेट को माइनस कर देंगे एंड विल गेट टू नो दिस इज द डेट और दिस इज द एज, राइट? किसी भी चीज का कैलकुलेशन करने के लिए आज से कैलकुलेशन करना है। अगर हमने किसी भी चीज का हमने देखना है, आप यू बॉट अ ग्रोसरी लाइक फ्रॉम सम ऐप, मोबाइल ऐप, and I want to see like when last time you bought a grocery from that mobile app, तो मैं क्या करूंगा, आज की डेट मेरे माइंड में आएगी, आज की डेट, then I will minus that to जिस दिन आपने बाय करी थी। I will see कि आज तक आपको 2 महीने हो गए आपने उस ग्रोसरी ऐप से बाय नहीं करा, तो I will call you and find out। तो that is the way। अब एक बंदे ने ज्वाइन करा, आपने ज्वाइन करा कंपनी को, अब मैं देखना चाहता हूँ कि आपने 90 डेज कंप्लीट कर लिए हैं, योर प्रोबेशन पीरियड इज कंप्लीट और नॉट। हाउ विल आई सी? I will use my system date today and I will minus that from your joining date, the date of hire. Yes, I will get to know how many days you have completed. Absolutely. This is the usage. Okay, ये डॉलर की साइन क्यों दे रहा है यहाँ पर? जैसा ऊपर है यहाँ पर हम सेशन स्टार्ट टाइम डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, हम सिक्वल अगर कहीं पर लिख रहे हैं वहां पर यूज नहीं कर सकते, तो यूज दैट यू शुड स्पेसिफाई $1,000। सो ऐसा होता है कई बार कोई चीज कहीं पर आपको यूज करनी होती है, दूसरी जगह वो एक इश्यू क्रिएट कर रही होती है, राइट? उसको $1,000 करके ही करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग इन मॉस्क, so you should make sure that you should have you know आपका जो एक आप कैप पहनते हैं वो पहन के जाएं, राइट? कहीं पर कोई ना कोई एक प्रोटोकॉल फॉलो होता है, तो वो प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए हमें करना पड़ेगा। अच्छा, राइट? मतलब ऐसा प्रोटोकॉल फॉलो भी जब भी होता है उसका कोई लॉजिक होता है, राइट? कहीं पर उसको मतलब मान लो अगर हम वो कैप पहन के जाते हैं, वो हम पहन के जाते हैं, उसका कोई ना कोई रीजन है जब भी हम पहन के जाते हैं। If I'm going into temple, then I'm putting let's say hanky on my head, so that's also like have some logic। तो उन लॉजिक की वजह से हम करते हैं ना, that's same as this, like उसके अंदर भी $1,000 लगाया, उसका भी कोई लॉजिक है। अच्छा, एक तो डिफरेंस आपको पता लग ही गया, एक के अंदर सिक्वल ओवरराइड यूज कर सकते हो, एक के अंदर नहीं कर सकते। $1,000 के अंदर लगाने के लिए सिक्वल ओवरराइड आप यूज करोगे। यहाँ पर डेट और टाइम बता रहा है जो रिटर्न्स यहाँ पर है, ट्रांसफॉर्मेशन डेट टाइम डेटा टाइप्स, बट यहाँ पर बोल रहा है ना सीक्वल ओवरराइड नहीं कर सकते। फिर सेम यहाँ पर भी वही है, यूजर सिस्टम क्लॉक ऑन मशीन होस्टिंग पावर सेंटर सर्वर। डिफरेंस है ना, वो एक डिफरेंस बनाने के लिए उसको एज अ स्ट्रिंग यूज करने के लिए, वहां पर आप डेट टाइम में यूज कर रहे थे, यहाँ पर आप एज अ स्ट्रिंग यूज कर रहे हो, तो डिफरेंस है ना, मतलब उसके दोनों के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। दैट्स द रीजन व्हाई वी आर यूजिंग $1,000। $1,000 आपका सिस्टम वेरिएबल है, सिस्टम वेरिएबल्स के साथ यूज होता है। अगर आप $1 लगाओगे देन यू कैन राइट योर ओन variable, user variables, user defined variables you can say, or in case if you are writing let's say parameters or parameter file के अंदर आपने कुछ लिखना है, session variables लिखना चाहते हो, वो $1 से आप बताते हो। अच्छा, करेक्ट, राइट। so